डैडी को फ़ोन किया, मैंने कहा आई लॉस्ट माई चाइल्ड। मैं रो पड़ी, मैं कहा गया मेरा बेटा। मैंने गलती कर दी, पति को गालियाँ दी, मैंने कहा बस गया मेरा बेटा। मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिस्टिक है, तो पहले मैं सरप्राइज थी, ये है क्या, कैंसर है, ऐसी कोई नई बीमारी निकल आई है। ऑटिज्म डिजीज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ਰਾਈਟ? नो, इट्स नॉट अ डिजीज। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਆਟਿਜ਼ਮ। जब दिमाग की बात है तो सबसे पहले इंडियन पेरेंट्स तो यही सोचेंगे कि बेटा पागल तो नहीं है दिमाग में, मतलब क्या हुआ क्या है, दिमाग की बात है, राइट। बात कर रहा है, मम्मा पापा कुछ बोल रहा है, नो। अगर तुम बुलाते हो तो वो तुम्हें जवाब दे रहा है, तो मैंने कहा नहीं, वो अपने में ही खेलता है, वो जवाब नहीं देता है। कनाडा में हमको यही बोला गया बीए थेरेपी भेजेंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी भेजेंगे, बट किसी ने भी यहाँ पे उसके ब्रेन को टेस्ट नहीं किया। इधर वाले डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं नॉर्मल है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर ने बोल दिया कि यार इसको कराओ नहीं तो खत्म। ये भी होता है ना कि अब कौन सा डॉक्टर सच है, दुविधा में आ जाती है। जब वो लोग लेने आए, इट वाज लिटरली फीलिंग लाइक मेरा बेटा को बड़ा सा ऑपरेशन के लिए अंदर जा रहा है। जी 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 जी। क्योंकि बाहर लिखा हुआ है ऑपरेशन रूम। अब शाम को मैं देख रही हूँ सबके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मेरा बेटा उठा ही नहीं, वो सोया पड़ा है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, बट मुझे डर लगने लग गया कि आई लॉस्ट माई चाइल्ड। ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? चौथे दिन जब उठा ना, यू वोंट बिलीव, ही वाज काम। आप उसको बुलाओ, सोहम कम हियर, वो आ रहा है, सोहम ईट दिस, वो खा रहा है। एक बच्चा अगर नॉर्मल ना हो और थोड़ा सा भी घर में हो जाए ना, तो कपल एज अ कपल आप लोगों का रिलेशन खराब हो जाता है। और हमारा रिलेशन सच में खराब हो रहा था, हम झगड़ रहे थे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਈ ਕੈਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਹਾਨੀ ਟਾਕ ਆਫ ਦ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲ ਓਵਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਟਿਸਟਿਕ ਚਾਈਲਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ आई कैन नाइग्रा फॉल कन्वीनियंस सेंटर पे होने वाला है अप्रैल 2 को और अप्रैल 3 को। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ 2 ਤੇ 3 ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं। शिल्पानाथ, सत श्री अकाल। आप बताओ क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सो मैं थोड़ी हिंदी थोड़ी पंजाबी मिक्स करके बोल लूँगा, चलेगा। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ
ਉਹਨੂੰ autism ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਔਰ ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। नॉर्मल है, हाँ जी। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ autism। ਉਹ autism ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि how was the experience, how was the emotion? राइट, सो जब मेरा बेटा 2 साल का था तब हमें पता चला कि वो ऑटिस्टिक है। और जब ये वर्ड मुझे बोला गया तो एज अ इंडियन मदर हम तो इतना ये इन्फॉर्मेशन रखते नहीं है, राइट। तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिस्टिक है तो पहले मैं सरप्राइज, ये है क्या, कैंसर है या कोई ऐसी कोई नई बीमारी निकल आई है, या बच्चे का मतलब अपाइश तो दिख नहीं रहा है, इज फाइन, राइट। बहुत चीज़ें दिमाग में आ जाती है जी। बट देन हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा, कंसल्टेशंस ली, हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा गया, हमें काफ़ी चेकअप्स के लिए भेजे गए, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया हमें। तो जब साइकोलॉजिस्ट के पास हम गए तब भी दिमाग में आ रहा था, अरे कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं है, क्योंकि जब दिमाग की बात है तो सबसे पहले इंडियन पेरेंट्स तो यही सोचेंगे कि बेटा पागल तो नहीं है दिमाग में, मतलब क्या हुआ क्या है, दिमाग की बात है, राइट। सो थोड़ा सा डर लग जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट और फिर हमने धीरे धीरे इसकी सारी रिसर्च शुरू की। तो जैसे कुछ रिलेटिव्स हैं वो बोलते थे कि अरे इसने चलना शुरू जल्दी किया है, बातें बाद में करेगा, अरे अभी तो छोटा है, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, ये बातें कर लेगा, तुम क्यों इतना ये ले रहे हो, बच्चा तो नॉर्मली दिख रहा है, कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, खेल रहा है कूद रहा है सब तो है, तो तुम क्यों अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, है ना। तो एक फैमिली प्रेशर भी आ जाती है और एक डॉक्टर की प्रेशर भी आ जाती है, माँ बाप पे, दोनों पे, है ना। तो हमने डॉक्टर का साइड होल्ड ऑन किया कि जो भी डॉक्टर बोलेंगे हम करेंगे। हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई एंड देन धीरे धीरे हम समझने लगे कि ये है क्या। सो हमें जिस पर हमें पता चला कि उसकी स्पीच नहीं है, अभी बोलता नहीं है, वो समझता नहीं है, सुनता नहीं है। उसकी हमने ईयरिंग सुनने की ये चेक करवाया, नोज़ चेक करवाया, साइनस का चेक करवाया, सब कुछ हमने चेक करवाया, सब नॉर्मल आया, है ना। तो हमने आफ्टर डूइंग ऑल रिसर्च यहाँ पे तो बस यही बोला कि थेरेपी करनी पड़ेगी, स्पीच थेरेपी करनी पड़ेगी, बिहेवियर थेरेपी करनी पड़ेगी, ऑक्यूपेशन थेरेपी करनी पड़ेगी, है ना, जिससे बच्चे को सिखाया जाएगा डे टू डे टाइम पे। बट यहाँ पे क्या है ना कि बच्चे को खेलते खेलते सिखाना है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, उसको फोर्स मत करो। आई अंडरस्टैंड, फोर्स मत करो क्योंकि एग्रेसिव हो सकता है या फिर एंगर इश्यूज आ सकते हैं, बहुत चीज़ें आ सकती हैं। बट एज अ इंडियन पेरेंट हमारा तो यही है ना कि कर ले भाई, नहीं तो छित्तर पड़ेंगे। जी 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 है ना जी। तो बट ये होता है कि ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो ऐसे सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि देखो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो लोग खाने में काफ़ी पिकी होंगे, खाना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ही सिलेक्टेड खाना खाएंगे। और मेरा था कि भाई तू खा ले, अगर तूने वॉमिट भी की तो यही वॉमिट खिलाऊंगे, छित्तर पड़ेंगे, लेकिन खाना है तुझे। ठीक है, टिपिकल मदर जी। सो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम इंडिया की और कनाडा की जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फाइंड आउट किया कि इंडिया में देयर इज अ ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिस्ट पे ट्रीटमेंट होती है। सो एक मिनट, आपने मतलब ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ autism ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ autism ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो कनाडा में हमको यही बोला गया, एज मैंने पहले भी बोला, ABA थेरेपी भेजेंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी भेजेंगे, सारी चीज़ें हमें थेरेपी पे ही भेजा जा रहा है कि उसके बिहेवियर को उसको लाइक यू नो सिखाते सिखाते वो सीख जाएगा। बट किसी ने भी यहाँ पे उसके ब्रेन को टेस्ट नहीं किया। ऑटिज्म डिजीज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? नो, इट्स नॉट अ डिजीज। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਆਟਿਜ਼ਮ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕਦਮ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ अपना सर्च करना स्टार्ट किया? सो बीइंग अ मदर, मैंने तो जब वो 2 साल का था हमें पता चला, और जब तक वो 5 साल का नहीं हुआ तब तक हम ये सारी रिसर्च ही कर रहे थे कि हम कैसे हम लाइक इसको ट्रीट करें, इसकी हेल्प हम कैसे करें, है ना।
तो क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर रहे, ABA थेरेपी करवाया, प्राइवेट करवाया, एरिनो किड्स में लेके गए, एम थेरेपी में लेके गए, यू नेम इट एंड वी आर देयर, ठीक है। हम सब जगह उसको ले, पर फर्क आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, वो ऐसे ही घूमे जा रहा है, उसको बुलाओ तो वो जवाब भी नहीं देता है। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? सो जब 2 साल के बच्चे होते हैं ना, तो एक मेडिकल टेस्ट होता है जो फैमिली डॉक्टर करवाती है, जी। ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं उसके मोटर स्किल्स, जैसे वो पॉइंट कर रहा है तो जी। मेरा ना, बात कर रहा है मम्मा पापा कुछ बोल रहा है नो, ये अगर तुम बुलाते हो तो वो तुम्हें जवाब दे रहा है, तो मैंने कहा नहीं, वो अपने में ही खेलता है, वो जवाब नहीं देता है। तो ये सारे जो साइंस थे, तो मेरी जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने बोला कि हम एक टेस्ट करवाएंगे, उससे हमें पता चलेगा, जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट थी हमें भेजा गया था, तो उसमें हमें पता चला कि ही इज़ अ माइनर ऑटिस्टिक। ओके। सो दैट्स हाउ मेरे हस्बैंड को जैसे पता चला, तो मेरे हस्बैंड ने रिसर्च करना शुरू कर लिया। सो व्हेन सोहम 3 साल का था, तभी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इंडिया में एक ट्रीटमेंट होती है, स्टेम सेल बोलते हैं, स्टेम सेल थेरेपी। तो वो हमने सोचा कि वी शुड डू दैट। तो मैं अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि आई हैव सीन मेरी फैमिली, बैक इन माय फैमिली काफ़ी इश्यूज भी हुए हैं। जैसे मेरे मामा को ब्रेन में क्लोट हो गया था, देन एज अ बीइंग इंडियन हम मूवीज देखते हैं, तो मुझे लगा क्रिश की तरह इसका ब्रेन बंद ना हो जाए, तो बहुत चीज़ें दिमाग में आती है, राइट। सो माय हस्बैंड इज प्रैक्टिकल, आई एम इमोशनल ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। यस। ਸਾਰੀ ਮਦਰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੋ। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने सारी रिसर्च करी, सब कुछ निकाला है ना कि चलो ले चलो, बट मेरा था नहीं, हम नहीं जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये थेरेपी ही ट्राई करते हैं, सब करते हैं। बोला नहीं, वहाँ पे जाके दिखाते हैं, मैं क्या प्रॉब्लम है, एक बार सिर्फ दिखा ले, है ना, सिर्फ टेस्ट करा ले। तो मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डर रही थी, आई वॉज रियली स्कैर्ड। फिर भी हमने सोचा ठीक है हम जाएंगे। सो वन गुड डे दिसंबर में हमने सोचा कि हम जाएंगे इंडिया। एंड जब हम वहाँ पे गए तो उन लोगों ने ब्लड टेस्ट किया, MRI किया, उसके ब्रेन का स्कैन किया, जो स्कैन में नाम भूल गई अभी, उसको पैट स्कैन आई थिंक बोलता है। जी जी जी। पैट स्कैन करते हैं उसके ब्रेन को, लाइक यू नो दे शो द मैप ऑन द ब्रेन। MRI से ऊपर होता है जिसमें वो एक्चुअल ब्रेन की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। जी जी। सो वो उन्होंने किया। एंड देन जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी, तब मैंने उनको बोला, देखो डॉक्टर लैंग्वेज ना यूज़ करना, मेरे साथ नॉर्मल बात करना, और मुझे सिर्फ 2 लाइन में बताओ मेरे बेटे का क्या होगा, है ना। तो उन्होंने मुझे दिखाया, पिक्चर दिखाया। तो वहाँ पे एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू, एक होता है येलो, एक होता है रेड। रेड है मतलब हाइपर है, येलो का भी हाइपर से ही नियर बाय है। जो ब्लू है दैट इज डैमेज सेल, वो सारे सेल डैमेज हैं, और सोहम का ये वाला पार्ट डैमेज था। तो सर ने मुझे बताया कि ये देखो, ये पार्ट तुम्हारा डैमेज है, ठीक है, अगर तुम उसको रिपेयर ही नहीं करोगी तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड, नथिंग, राइट। सो उन्होंने बोला कंप्यूटर का मदरबोर्ड ही चला जाए तो आप क्या ही कर लोगे, कंप्यूटर कौन सा सॉफ्टवेयर डाल के ऑन करने वाले हो, मदरबोर्ड ही तो गया है। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो उन्होंने मुझे एकदम सिंपल भाषा में बताया कि दिस इज द थिंग, अगर तुम रिपेयर नहीं करोगे, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड उन्होंने मुझे एक गारंटी के साथ बोला था कि तू कुछ भी कर ले, इसका कुछ ना हो पाएगा। सो बीइंग अ मदर, जब आप मतलब ये पता चला कि यार मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है कि जो रिपेयर नहीं करोगे या मतलब होगी नहीं, तो वो सारी लाइफ ऐसा रहेगा, वो एक बड़ा इमोशनल टाइम भी होगा, क्योंकि इधर वाले डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं नॉर्मल है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर ने बोल दिया कि यार इसको कराओ नहीं तो खत्म। तो आपको वो कैसा फील हुआ तब? जैसे आपको उन पे गुस्सा आया या अपने कैनेडियन डॉक्टर्स पे दया आई कि यार ये सही है? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि ये करवा तो लेंगे, राइट, बट ये भी होता है ना कि अब कौन सा डॉक्टर सच है, दुविधा में आ जाती है जी, कि अब ये सच बोल रहा है या वो लोग सच बोल रहे हैं जी, किस पे भरोसा करोगे आप, है ना। तो उसके बाद हमने सेकंड कंसल्टेशन लिए,
मेरे हस्बैंड के साइड पे काफ़ी डॉक्टर्स उनके फैमिली में हैं, उन सब से बात की हमने, है ना। तो वेन धीरे धीरे जब पता चला तो बोला नहीं, इस ट्रीटमेंट से काफ़ी लोगों से फ़र्क है। एंड हम लोग उसी हॉस्पिटल में थे, सर ने हमें वहीं पे बुलाया था। न्यूरोलॉजिस्ट जो नवी मुंबई में है, उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया और पेरेंट्स से मिलवाया, जिनके पेरेंट्स ने ये कर लिया है, ट्रीटमेंट करवा लिया है, जिनके बच्चों को ऑलरेडी चेंजेस हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है सारे, है ना। तब तो यकीन करना ही पड़ जाता है कि हाँ कुछ तो उम्मीद है, बोलता ना, समथिंग इज देयर। सो मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था, डोंट वेट टिल यू हैव टू से आई विश आई कुड डू इट, है ना। कि जिंदगी में जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम सोचोगी कि हाँ काश मैंने ये किया होता तो आज ये लड़का ऐसे नहीं होता, काश मैंने वो सुन लिया होता। तो वो खास वर्ड ये करने के लिए हम गए थे, हमने देखा, हमने लाइव एग्जाम्पल्स देखे कि बच्चों में फ़र्क है। उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए, बहुत सारे समझाया, हमें फाइल्स दिखाई, सब कुछ उन्होंने बताया। एंड देन वी डिसाइडेड कि हाँ हम करेंगे सर के साथ, है ना, ट्रीटमेंट करेंगे। सो व्हाट हैपेंड इज़, वो लोग 7 डेज़ का होता है या 14 डेज़ का होता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला करना है तो पूरा करते हैं, अधूरा करके फ़ायदा क्या। सो सर ने बोला 7 डेज़ भी पूरा ही है, बट 14 डेज़ वे एडवांस, थोड़ा सा एडवांस है। तो उसमें ये आया कि मैंने कहा हम तो वैसे भी जा रहे हैं एंड वी गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग देयर, तो हमें तो प्रॉब्लम है नहीं ना, जॉब को लेके प्रॉब्लम, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम है इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं थी। बट कुछ पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम नहीं होते, तो उनके लिए 7 डेज इज 7 डेज। संडे को दे हैव टू गो बैक, दे डोंट हैव चॉइस, राइट। सो हमने 14 डेज का लिया। 14 डेज में मंडे को ट्रीटमेंट होती है, बट हमें मंडे को कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि हम दिसंबर में ऑलरेडी सारा कुछ करा के आ गए थे। पैट स्कैन, उसका ब्लड वर्क, MRI, सब कुछ हमने किया था। फिर ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे आपको पहले से बताया जाएगा कि हम सुबह 5 बजे बेटे को ले जाएंगे। और हॉस्पिटल इज़ जस्ट नॉर्मल लाइक होटल, आपको लगेगा नहीं आप हॉस्पिटल में हो, क्योंकि बच्चे के हिसाब से बनाया गया है कि बच्चा डर ना जाए। तो ट्यूसडे मॉर्निंग 5 बजे जब वो लोग लेने आए, इट वाज लिटरली फीलिंग लाइक मेरा बेटा एक बड़ा सा ऑपरेशन के लिए अंदर जा रहा है। जी 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 जी। क्योंकि बाहर लिखा हुआ है ऑपरेशन रूम, बट ऑब्वियसली दे जस्ट गोइंग टू गिव इंजेक्शन। बट जब बच्चा अंदर गया, आपके हाथ से जब जा रहा है अंदर, तब लाइफ हिल जाती है। इट्स लाइक ये क्या होगा अब, नाउ व्हाट, आई लाइक, जो मैं अकेली नहीं, वहां जितनी माँ खड़ी थी, एक ऐसी माँ नहीं होगी जिसकी आंख में आंसू नहीं था। सब शिवर कर रहे थे, सब रो रहे थे कि अब क्या। जब बच्चा बाहर, 10 मिनट में बच्चा बाहर आ गया। अच्छा जी। 10 मिनट में बच्चा बाहर आ गया, बोला आप अपने रूम में जा सकते हो, बच्चे को कुछ खाना पीना नहीं है, रेस्ट कराओ, कुछ नहीं है, सेकंड शॉट के लिए आपको बुलाया जाएगा 2 बजे। मैंने कहा ठीक है। 2 बजे तो फिर भी हिम्मत आ गई कि चलो ठीक है, 10 मिनट में लड़का बाहर आ गया, सब नॉर्मल है ना। जब वो सेकंड शॉट के लिए गया तब इतना डर नहीं लगा, थोड़ा सा लाइक स्टेबिलिटी आ गई थी। अब शाम को मैं देख रही हूँ सबके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मेरा बेटा उठा ही नहीं, वो सोया पड़ा है। और मुझे बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ऐसा, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, बट मुझे डर लगने लग गया कि आई लॉस्ट माई चाइल्ड, क्योंकि वो एकदम ऐसे फ्लैट सोया हुआ है, डूइंग नथिंग, मूव भी नहीं कर रहा है, मैं उसको जगा रही हूँ, झाग भी नहीं रहा है, बट सब कुछ नॉर्मल है उसका, लाइफ, ये सारे मशीन, सब कुछ नॉर्मल, हार्ट रेट चल रही है, सब कुछ है, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। सारे डॉक्टर बोल रहे नॉर्मल है, नॉर्मल। उठ क्यों नहीं रहा है लड़का। काफ़ी डॉक्टर्स आए, बार बार उसको डॉक्टर्स चेक करने आ रहे हैं, नर्सेज चेक कर रही है उसको, सब बोल रहे हैं मुझे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द एंड मुझे डर लग रहा है, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मैं शिवर कर रही हूँ। मैंने मेरे डैडी को फ़ोन किया, मैंने कहा आई लॉस्ट माई चाइल्ड। मैं रो पड़ी, मैं कहा गया मेरा बेटा, मैंने गलती कर दी, पति को गालियाँ दी, मैंने कहा बस गया मेरा बेटा, छीनना था तो मैं छीन लिया मेरे बेटे को, आई एम डन नाउ। मैं बहुत गुस्सा हुई थी, आई वॉज मैड लाइक नथिंग। 12:30 बजे डॉक्टर ने जब ख़त्म किया ना, फर्स्ट वो मेरे रूम में आए, सेम उसने वो ये पहना हुआ था, मेडिकल ऑपरेशन मेडिकल, हाँ, गाउन। जैसे उनका ख़त्म हुआ ना, फर्स्ट थिंग वो मेरे रूम में आए।
मेरे साथ बैठे मेरे साथ बात की कि बोला ये दिस इज अ गुड थिंग व्हिच इज हैपनिंग। उसने कहा अगर चौथे दिन अगर तेरे बेटा नहीं उठे या फिर वो नॉर्मल रिएक्ट ना करे, यू चेंज माई नेम। ये 4 दिन के ऊपर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज गुड कि उसके ब्रेन में गया है ये, जो भी हमने उसको किया है उसको तुरंत इम्पैक्ट हुआ है। सो दिस इज वेरी गुड साइन। भाई आप तो डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ, मेरा बेटा लेटा हुआ है। फिर भी मैं बुआ को फ़ोन कर रही हूँ, पापा को फ़ोन कर रही हूँ बार बार, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और मैं बस हनुमान चालीसा गाए जा रही हूँ, भगवान का नाम लिए जा रही हूँ कि बस कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को सेव कर दो। मैं आज ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगी। मैं मतलब आप बोल सकते हो मैंने भगवान के साथ सारे प्रोमिसेस कर लिए, सारियां डीला सारा डीला सब सब कुछ हो गया है ना। बट चौथे दिन जब उठा ना, यू वोंट बिलीव, ही वॉज काम, एकदम शांत। आप उसको बुलाओ, सोहम कम हियर, वो आ रहा है, सोहम ईट दिस, वो खा रहा है। एकदम ड्रास्टिक चेंज। यस, फॉर माई चाइल्ड सब हो नहीं सकता कि सब में आए, 5 उंगलियां सेम नहीं है जी। वैसे, सबके बच्चे का अलग ये आएगा। बट मेरे बेटे ने 5th डे पे ही वॉज काम, नॉर्मल, अ नॉर्मल चाइल्ड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो हम खाना खाना है, सो हम वॉज लिसनिंग एवरीथिंग, आई कॉन्टेक्ट पूरा, इतना भी मतलब ये नहीं था, बट आई कॉन्टेक्ट था। ही वॉज काम, हाइपर नहीं था। पहले वो मतलब हाइपर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, जंप करता था, एक जगह बैठेगा नहीं। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आराम से बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। हम सरप्राइज थे, हम मानने के लिए रेडी नहीं थे कि ये सोहम है। मैंने वीडियो कॉल करी पेरेंट्स को, वो देख रहा है उनको फोन पे, मतलब हम स्पीचलेस थे। सर आए हमारे रूम पे, हमने बोला, सर ने बोला अब क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। फिर रब ਨਾਲ ਡੀਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? हाँ, वो सारी पूरी की हमने, सारी की, yes, सब कुछ किया हमने। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਛਲ ਕੂਦ ਇਹ वो है ना, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। सभी लोग ये देखते हैं कि यार ये कुछ डिफरेंट है, बट जब आप देखते हो कि यार ये तो कंप्लीटली मेरे दूसरे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो यू फील सो रिलीव्ड। यस, और एक अंदर से जो खुशी होती है वो तो अलग ही थी, अलग ही थी। अब मानोगे नहीं, हमारे पे इतना स्ट्रेस था। एंड जो आलोक सर बोलता है ना कि ये जो है ना, एक बच्चा अगर नॉर्मल ना हो और थोड़ा सा भी घर में हो जाए ना, तो कपल एज अ कपल आप लोगों का रिलेशन खराब हो जाता है। और हमारा रिलेशन सच में खराब हो रहा था, हम झगड़ रहे थे, गुस्सा बच्चों पे आ रहा था। कहाँ फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी बच्चों को, लाइक आप मानोगे नहीं, हमने सोहम जो बेजुबान है, जो बोल भी नहीं पाता है ना, बच्चा समझ भी नहीं पाता था तब, तो उसको हमने लगाई है, चाटे लगाए हैं कि बैठ जा, बहुत हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि एक जगह हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है, एक जगह इनको डील कर रहे हैं, है ना। वो झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, कपल, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि घर के काम, बच्चों को देखना, सब कुछ करते हैं। अब जब ये एक टाइम फ्रस्ट्रेशन आती है ना, तब वो बच्चों पे निकलती है। तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि एज अ कपल, चाहे आप जल्दी उठो, चाहे रात को देर को सोने जाओ, बच्चे सो जाए उसके बाद, है ना, आप दोनों को बैठ के बात करनी है। आप लोग पहले आप दोनों दोस्त हो, आप दोनों की अगर रिलेशन खराब होगी ना, तो आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने वाइफ को या हस्बैंड को, जो भी है ना, पार्टनर को समझो और एक दूसरे को टाइम दो। ये बहुत जरूरी है। ये बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं ये चीज़, और फिर सारा फ्रस्ट्रेशन घर में निकलता है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਉੱਠਿਆ,
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੱਬ ਦਾ। हाँ थैंक यू। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। वो तो हमने मतलब यही बोला कि थैंक गॉड हम यहाँ आए, और ये कैनेडियन सिस्टम में तो बच्चा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट, मतलब होगा, उम्मीद है, बट इट लाइक 30 40 50 साल का हो जाएगा तब तक उसकी थेरेपी ही चलेगी, इम्प्रूवमेंट कोई दिखेगा नहीं। क्योंकि सर ने बोला कि तुम्हारे सेल्स ही डैमेज है तो स्पीच कहाँ से आएगी। अभी आप देखो जो भी कैनेडियन है, ठीक है, कैनेडियन में एक भी ऐसा केस नहीं है जिनकी स्पीच आई। आज भी वो स्पीच के लिए थेरेपी कर रहा है, आज भी वो अपने बिहेवियर के लिए थेरेपी कर रहा है। सो हमको भी थेरेपी चाहिए, बट उसको फिर माइनर थेरेपीज चाहिए होगी, उसको सिर्फ रिमाइंडर्स देने होंगे, भाई हम जैसे कर रहे हैं हमें वैसे ही रहना है। सो ये चीज़ है कि कनाडा में क्या होता है कि खेल रहा है, खेलते खेलते जैसे मैं थेरेपी में ले गई उसको, है ना, वो खेल रहा है, चलो ओके कीप द कार हियर, वो नहीं खेलेगा, वो जाके खेलेगा, अच्छा कोई बात नहीं हम दूसरा करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं हम तीसरा करेंगे। अरे भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, बैठ के खत्म करवाओ ना। एक एज अ इंडियन मदर आई वुड थिंक दैट, राइट, कि बैठे हो एबीसीडी लिखने तो एबीसीडी तो लिखो पहले, फिर ही बाकी तुम्हें करना है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो जो कर रहा है उनको करने दो। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, ऑटिस्टिक अगर आपका बेटा बेटी जो भी है उनको डायग्नोज्ड हुआ है कि वो ऑटिस्टिक है, तो गवर्नमेंट उनको पर्टिकुलर एक अमाउंट देती है, बट उसकी वेट है 5 साल। अच्छा, जब तक वो पैसा आप तक आएगा तब तक आपका बेटा हो चुका होगा 5 साल बड़ा। अब जैसे कुछ फैमिली है वो हैंड टू माउथ होती है ना, जी, जिनके लिए एक ब्रेड भी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जी, एक एक थेरेपी जो ABA थेरेपी हो या ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, इट्स कॉस्टिंग यू $300 पर सेशन। पर उसमें 2 सेशन? सेशन मिलेंगे सिर्फ आपको, ठीक है। एक आप ये कराने जाओ, एलिवेशन कराने के लिए जाओगे कि हाँ हमें मे बी सर्टन स्पेस में हमें हमारा बेटा चाह रही हूँ कि वहाँ जाके वो कर ले, है ना, तो फर्स्ट सेशन जो होगा उनका है ना $250 चार्ज करेंगे, $300 चार्ज करेंगे। कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स पैसा? ये कनेडियन हेल्थ सिस्टम कवर नहीं करता। नो, गवर्नमेंट करता है, तो उस जो पैसे हमें अलोकेट किए गए जो 5 साल बाद मिलेंगे उसमें ये कवर करता है। सो तब तक आपको बिल्स रखने हैं, फिर उनको बिल्स दिखाओ एंड देन योर पेमेंट आर डन। फुली रिफंड कर देते हैं? हाँ वो रिफंड होगी, लेकिन 5 साल का 5 साल के वेट। सेकंड क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? बजट फ्रेंडली तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा भी आई थिंक $11,000 लग गए थे ट्रीटमेंट के, ऊपर से फिर आप फ्लाइट्स के अलग लो, और फिर जैसे मेरे हस्बैंड और बच्चे थे वो तो अलग होटल में रुके थे, उनके पैसे अलग लो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। सो ये मैं बात कर रही हूँ 6 महीना 7 महीना हो गया मैंने ये ट्रीटमेंट करवाई, तो ऑब्वियसली $US जैसे बढ़ेंगे प्राइस भी वैसे बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से सब कुछ चलता है, राइट। सो बट दैट $11,000 हमारा स्टे, खाना पीना, लॉन्ड्री, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशंस हो कुछ भी हो, एवरीथिंग वाज कवर्ड अंडर वन रूफ। 14 दिन के लिए? हाँ 14 डेज के लिए सब कुछ कवर्ड था। एंड ये उसमें ये पैट स्कैन, MRI, ये सब कुछ कवर था। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ $11,000 ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਥ ਇਟ ਹੈ ਕਿ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ,
ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵमेंट लगती है? सो जैसे मैं ट्रीटमेंट करा के आई, क्योंकि सर इवन इन इंडिया वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि ये ट्रीटमेंट करा लिया मतलब बच्चा ठीक हो गया, नो, इनको भी थेरेपी चाहिए, अभी भी थेरेपी चाहिए उनको, ठीक है। सो यू हैव टू, स्पीच थेरेपी है, उनका बिहेवियर थेरेपी है, वो कंटिन्यूसली देना पड़ेगा उनको, ठीक है। जैसे ये लोग जो बच्चे हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्मार्ट होते हैं, वो टेढ़ा रास्ता निकाल के भाग लेंगे, आपको उसको सीधे रास्ते पे रखना है। इसलिए ये सारी थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रखो। और जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तब उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तब मानो कि मैं उसको किताबों में लगा रही हूँ, उसका मन कहाँ पर है हमें ढूंढना है। जैसे मेरा बेटा म्यूजिक बहुत इंजॉय करता है ना, तो म्यूजिक बेस से मुझे उसको सिखाना पड़ता है कि, एंड ही इज डूइंग गुड विथ म्यूजिक। तो स्कूल में जैसे स्पीच उसका स्पीच ये है ना, तो आई हैव, मतलब स्कूल में हमने बोला नहीं कि हम ये ट्रीटमेंट करा के आए, ठीक है। हमने जस्ट बोला कि उसने वहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड ABA थेरेपी करी थी, एंड इससे उसे बहुत इम्प्रूवमेंट है, हमने और कुछ बोला नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे आके जब विद इन अ मंथ स्कूल से लेटर आया है ना, कि आई कॉन्टेक्ट माइलस्टोन डन, लिसनिंग पावर इंक्रीज्ड, ही इज नॉट हाइपर। अभी हम वर्क कर रहे हैं कि वो ज़्यादातर बैठे, वो एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है, जस्ट उसके साथ एजुकेशन असिस्टेंट ये बोलते हैं, वो पूरा टाइम होती है उसके साथ, जो उसको गाइड करती है, हेल्प करती है ना। तो वो उसको अभी मैचिंग करा रही है। आप बिलीव करोगे, जो बच्चा बोलता नहीं था, कुछ नहीं कर रहा था, वो आज स्कूल में मैचिंग कर रहा है, स्कूल में बच्चों के साथ खेलता है, सिल्वर मेडल ले आया रनिंग करके, क्योंकि उसको भागना बहुत पसंद है। और इन बच्चों का ना एक फेज आता है, कभी उनको येलो पसंद आता है, कभी कोई धागा पसंद आ जाएगा, कभी कुछ पसंद आ जाएगा ना। तब उसको येलो बहुत पसंद था, उस फेज में उसको येलो शायद पसंद था, है ना। तो टीचर ने वो येलो पैकेट लेके वहाँ फेंका और वो भागा जाके वो मेडल जीत के आया। सो इन बच्चों के लिए ना, उनको आप यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको देखना पड़ेगा उसको क्या पसंद है, बस उस हिसाब से टूट पड़ो कि भाई यही यूज करके मुझे सिखा देना है तुझे सारा। हमने धागा, इनिशियल डे उसको धागा पसंद था, मैं धागा लेती थी, मैंने कहा पहले तू स्पीच दबा, फिर ही मैं धागा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो ये हो जाता है कि भाई धागा, मतलब ये होता है ना कि डील होती है बच्चे के साथ, भाई तू ये कर तो मैं ये दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਦਰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, लीगल नहीं है या अवेलेबल नहीं है? लीगल नहीं है। कुछ बैकग्राउंड? बिकॉज मुझे आई डोंट नो अबाउट, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट के बारे में इतना कुछ क्यों नहीं अलाउड है, बट हमने ट्राई की थी डॉक्टर्स के साथ बात करने की, मैं नाम नहीं लूँगी, बट जो हमारा डॉक्टर था वो रूम से चल के निकल गया, हमसे बात भी नहीं की, ही जस्ट लेफ्ट द रूम। उन्हें बोलते यू आर अ पेरेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो करना है, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट इट, एंड ही लिटरली लेफ्ट ऑन आवर फेस। उसने कोई जवाब नहीं दिया हमें, हमने बहुत डॉक्टर से पूछने की कोशिश की, nobody answered us. So, डॉक्टर गल ही नहीं करना चाहता इस बारे? No, they just said we would suggest no. चलो ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਸੋਹਮ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਈ ਕੈਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। सो इवेंट हो रहा है 2nd एंड 3rd को। सो यहाँ पे डॉक्टर टेम्पल भी आ रहे हैं। डॉक्टर टेम्पल अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उन पर एक मूवी भी बनी है जी। खुद की, है ना। जी। वो खुद एक ऑटिस्टिक है, ठीक है। वो आ रहे हैं वहाँ पे और 15 स्पीकर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं जो आपका न्यूट्रिशन, बच्चे खाना क्या खा रहे हैं, क्या अच्छा है उनके लिए खाना, है ना। फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, जिससे हम कैसे पता चले हमारे बच्चे का बिहेवियर हम कैसे सुधार रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेके जो ऑटिस्टिक रिलेटेड है सारे, जो आपके बच्चे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ, वो सारे स्पीकर्स वहाँ पे आने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग व्हाट। एंड सारे पेरेंट्स वहाँ पे फ्री जा सकते हैं, सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आप जब एंट्री करोगे आपका QR कोड मिलेगा। सो QR कोड स्कैन हो जाएगा एंड देन यू कैन कम इन। सो फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ जहाँ पे डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स लाइव कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है एंड यू विल हैव ऑल द आंसर्स देयर। आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो उनको। सो यू विल हैव अ क्वेश्चन टाइम। आप सुन भी सकते हो वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटिस्टिक है वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं, ये तो मैं सोहम की स्टोरी बोल रही हूँ, बाकी पेरेंट्स की अलग होगी। सब पेरेंट्स की 5 फिंगर्स आर डिफरेंस, सब पेरेंट्स की अलग अलग स्टोरीज होगी। अगर आप लोगे तो आपका पूरा चैनल बढ़ जाएगा। इट्स वेरी डिफरेंट। बट नॉलेज इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप प्रोफेशनल से लो, ना कि लाइक गूगल में जाके सर्च करके या फिर 1-to-1 सुन के। फर्स्ट थिंग हमें देखना है हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, हम बच्चे को कहाँ से हेल्प कर सकता है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमारे इंडियन में ये प्रॉब्लम है, वी विल हाइड, हम छुपा देते हैं ना कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। ये तो अरे इसको पता चल जाएगा तो मेरे बच्चे को के बारे में क्या बोलेगा, ये काफी कि हाँ अगला ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल बिल्कुल जी। सो ये सारे जो इतने सवाल है ना हमारे दिमाग में, कभी कभी हमारे पास भी आंसर्स नहीं है। सो यहाँ इस इवेंट में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आप पूछ सकते हो वहाँ पे डॉक्टर से, राइट, कि स्टेम सेल कनाडा में क्यों नहीं है। आलोक सर खुद ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती, बट आलोक सर दे सकते हैं जवाब इसके बारे में। श्योर, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਸਟ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਔਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਰਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 1-to-1 ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਨ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਬੂ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।